تعلق ہے سارس کا. یہ جو ہے نومبر میں شروع ہوئی پچھلے، لیکن اس اتنے سے ہی مدت میں اس کے اتنے سارے وکٹمز ہو چکے ہیں اور اتنی جگہ پہ وہ پھیل چکی ہے کہ پوری دنیا میں اب اس کے بارے میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے، بے چینی اور انگزائٹی بھی. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے خوف کا شکار ہیں، اور صحیح طور پر یہ خوف کا شکار ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ پریشانی لے کر آئی ہے پوری دنیا کے لیے. اس کے بارے میں جو بھی کہا جاتا ہے کہ اویئرنیس اگر ہو تو پریشانی بھی کم ہوتی ہے اور انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے کسی بیماری کو. اور یہی باتیں بتانے کے لیے آ رہے ہیں ڈاکٹر سید رضا حسین صاحب ہمارے ساتھ، جو کہ ایسوسی ایشن آف برٹش حجاج کی جانب سے آئے ہیں اور اس کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. رضا صاحب، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو. بہت شکریہ یاسمین، اور اسلام و آداب عرض کرنا چاہوں گا آپ کو بھی، پی ٹی وی کی تمام مینجمنٹ کو، اور جملہ ناظرین کرام جو کہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، سارس کا یہ ابھی 6-7 مہینے ہی ہوئے ہیں اس کو شروع ہوئے دنیا میں، لیکن اس قدر تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ سارس کا مطلب کیا ہے، یہ ہے کیا بیماری؟ جناب، بہت ہی آپ نے صحیح اور خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز فرمایا ہے. سارس دیکھیے انگریزی میں ٹیکنیکل بات ہے سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم. اب یہ تو ہے ٹیکنیکل بات، لیکن اردو میں اسے عام الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک ایسی بیماری اور بالکل نئی نویلی بیماری جو کہ اب تک نہیں تھی. یہ فلو کسی کیفیت میں مبتلا کرتی ہے انسان کو، چھوت کی بیماری ہے، اور آغاز جو ہے وہ معمولی سے فلو کی طرح ہوتا ہے. مثلا ہلکا سا نزلہ، کھانسی، زکام، بخار وغیرہ ہوا، اور پھر بخار جو ہے وہ تیزی کے ساتھ 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے علامات مزید جو ہیں سر میں شدید درد، تمام جسم میں درد، قے، جلاب، الٹی، کوما، اور پھر نیمونیا کسی کیفیت. اور تب بھی اگر حفاظت یہ صحیح علاج معالجہ اگر شروع نہ ہو تو خدا نخواستہ موت بھی ہو سکتی ہے. یہ کافی خطرناک اس کے جناب سمٹمز بھی ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کس سٹیج پر، اگر دیکھیں نا، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلو کے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، تو فلو کے جب سمٹمز ہیں، ظاہر ہے اتنے لوگ فلو کا شکار ہوتے ہیں ہر ویک، تو کس سٹیج پر آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی مجھے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے؟ فلو تو ویسے آپ کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں آرام کر لیں تو اس کے بعد وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. You don't have to go to the doctor to get any treatment, yeah? But what the thing is کہ کس سٹیج پر جا کے آپ اپنے ڈاکٹر سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اب سرجری جانا چاہیے اور ڈاکٹر کو جو ہے یہ بتانا چاہیے؟ ریڈ لائٹ کب آن ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ جناب ٹیمپریچر پہ نظر رکھیے، اور جب آپ دیکھیں کہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے تیزی کے ساتھ یہ اوپر جا رہا ہے ٹیمپریچر، اور نمبر 2 غنودگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، نمبر 3 نہایت ہی اہم بات، سانس اکھڑنے لگتی ہے اور سانس لینے میں تکلیف، دمہ کسی کیفیت جیسے ہو، اکھڑا اکھڑا سا لگتا ہے، اور مریض جو ہے وہ یعنی کہ جیسے وہ ایک مزید وہ ایگزاسٹ سا ہونے لگ پڑتا ہے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے. جی ہاں، وہ ایگزاسٹ ہونے لگ پڑتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عام فلو سے ہٹ کے ہیں، اینڈ دیٹ مسٹ رنگ دی بیل. اور یہ سٹیج ہے کہ آپ اپنے جی پی کے ساتھ فوراً رابطہ کریں، اور بیرون مملک جو ہمارے ناظرین کرام ہیں وہ اپنے قریب ترین ہاسپٹل کے ساتھ جا کے ضرور رابطہ کریں، اور ان سے کہیں بھی کہ موسٹ پرابیبلی ان کا کانٹیکٹ سارس کے کسی مریض کے ساتھ ہو چکا ہے، یا وہ کسی ایسے ملک میں جا چکے ہیں، یا وہاں سے آئے ہوئے کسی سیاح کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے جو کہ سارس سے متاثر ہوں. یہ انتہائی ضروری بات ہے. اچھا، ساؤتھ ایسٹ میں تو یہ خاصا پھیلا ہوا ہے، ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. اب اگر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں وہاں پر، ان کے لیے آپ کیا احتیاطی تدابیر تجویز کریں؟ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ممالک، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب لیٹسٹ انفارمیشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کل رات کو 12 بجے تک کو میں کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرتا چلا رہا ہوں. لیٹسٹ جو پکچر ہے وہ یہ ہے کہ 28 ممالک سے متاثر ہو چکے ہیں، جس میں چائنا، ہانگ کانگ، تائیوان، اور پھر سنگاپور، اور اب اونٹاریو یعنی کہ کینیڈا سر فہرست ہیں. اب باقی 28 جو ہیں اس کا ٹائم اگر آپ ہوگا تو میں بعد میں ذکر کر دوں گا. لیکن ان ممالک کو، اور وہ 28 ممالک جو ہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ سفر نہ کیجئے. سب سے پہلے تو اہم یہ بات ہے.
ख़ास तौर पे हमारी ताजिर बरादरी जिन्हें कि वही मजबूरन इसीलिए जाना जी पड़ता हाँ, है, ये मैं उनके लिए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई जहाँ तक हो सके इसको अल्तवा में डाल लीजिए जब तक कि डस्ट सेटल हो जाती है। मेडिकल प्रोफेशन जो है वो मज़ीद इस पोजीशन में आ जाता है कि आपको गाइड कर सके और इस सिचुएशन को हम अपने कंट्रोल में ला सके, अबूर में ला सके और आपको क्लियरेंस दे सके कि हाँ जी ये इलाका सेफ़ है। जैसे कि रिसेंटली ओंटारियो को बताया गया कि अब ये सेफ़ है जाने के लिए। तो एक तो ये बात होगी, लेकिन अगर आपका जाना नागज़ीर है तो फिर सबसे अहम बात ये है कि मुतल्लिका एम्बेसी के साथ रब्ता कीजिए, उन्हें बताइए कि जनाब हम कम से कम इतना स्टे हमारा होगा, वो आपको भरपूर इंफॉर्मेशन देंगे हिफाजती इक़दाम के हवाले से भी और दीगर जनरल इंफॉर्मेशन भी आपके पास होगी। तीसरी जो बात है वो ये है कि जाने से पहले जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल के जाइए, चेकअप करवा लीजिए और देख लीजिए कि खुदा ना खास्ता पहले ही तो कोई फ्लू लगा या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं आपको लगी हुई, जी हाँ, जो कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे सार्स को एक सूडो सॉर्स की सी कैफियत जो उसमें मुब्तला कर दे आपको। तो ये मोटी मोटी हिफाजती तदाबीर। लेकिन सबसे जो अहम बात है, हम हर बीमारी के लिए वैक्सीन दिया करते हैं जितने जी। भी ट्रैवलर्स हैं। आई मीन हजोबरा के लिए आजमीन जाते हैं तो हम एनजाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह एशियन लोग जाते हैं तो हम कॉलरा, टाइफाइड की वैक्सीन लगाते हैं, टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं, बच्चों को यहाँ पे मीजल्स और मम्प्स की वैक्सीन लगाते हैं। वो है कि ये जितनी छूत की बीमारी हैं, स्मॉल पॉक्स में, सबके लिए वैक्सीन मौजूद है। जी। लेकिन जनाब यास्मीन सोचिए ये कि ये एक अछूता, अनजाना, अनोखा सा जरासीम जी, अभी अभी ये सामने आया है इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके। हम दिन रात साइंसदान जो हैं वो तमाम दुनिया में दिन जी। रात कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सुपरविजन के तहत, लेकिन अभी तक वो जरासीम मूजी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हल्का वो आहिस्ता आहिस्ता से तंग हो रहा है। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये आइडेंटिफाई हो सके, हम एक इफेक्टिव वैक्सीन तैयार कर सकें और फिर ताजिर हजरात या जो भी सयाह वहाँ पे जाना चाहते हैं हम उन्हें वैक्सीन देकर इम्यूनिटी उनमें पैदा कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये आपने ये बताया कि बेसिकली अभी तक इसका जो है वायरस जो है उसके बारे में नहीं मालूम हो सका कि वो क्या है, और ज़ाहिर है जब तक आपको यही मालूम ना हो कि क्या है, आप कैसे उसके लिए एहतियाती मतलब उसके लिए जो कोई ये वैक्सीन है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अब जो जहाँ तक इसकी जो थ्रेट का ताल्लुक है, ख़ास तौर पे अब हम अपने यहाँ पर आते हैं ब्रिटेन में, जी जी, बहुत से लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं यहाँ पे किस हद तक है। यहाँ पे तो अभी बहुत थोड़े से इंसिडेंट्स हुए हैं इन्फेक्शन के, अभी तक तो गॉड फॉरबिड कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है, लेकिन आप मुझे बताइए इस वक्त यहाँ पे क्या सिचुएशन जी है? हाँ, शुक्रिया। देखिए जनाब, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, कल रात को 12 बजे तक की इंफॉर्मेशन को लेकर आपके जी। सामने बैठा हुआ हूँ। जब से सार्स की इंफॉर्मेशन हमें मिली है आउटब्रेक की, तभी से यहाँ पे महकमा सेहत ने एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाकर जी। तमाम जनरल प्रैक्टिशनर्स को अप एंड डाउन द कंट्री, तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम उन अदारों को जो कि सेहत मुआवजा, इलाज मुआवजे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें नर्सिस भी शामिल हैं, तो हेल्थ विजिटर्स भी शामिल हैं, तो इन सब को एक प्रोटोकॉल जो है ये दे दिया गया था। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हों। अगर खुदा न खास्ता फ्लू किसी कैफियत महसूस होती है आपको, जो कि बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, एग्जैक्टली, तो ये अपने डॉक्टर के पास चले जाइए और अपने डॉक्टर से मिल के देखिए, उनके पास सारी वो एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं, तमाम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उनके पास मौजूद हैं, और अगर उन्हें सस्पिशन होती है कि ये पॉसिबल सार्स का वो हो सकता है कॉन्टैक्ट, तो उस सूरत में आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। तमाम हॉस्पिटल्स में स्पेशल क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बना दी गई हैं जहाँ पे कि 7 से 14 दिन तक अंडर सुपरविजन रखा जाता है, और इस दौरान में अगर खुदा न खास्ता सार्स की अलामत मज़ीद सामने आती हैं तो भरपूर उन पे जो है वो इलाज किया जाता है। और मैं ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त यूके में सिर्फ 6 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, और सब के सब 6 जो हैं वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में अप एंड डाउन द कंट्री ज़ेर इलाज हैं। और कल रात 12 बजे की न्यूज़ जो है, यानी अपडेटिंग मैंने जो की है, मैं बहुत इस पर रिसर्च करता चला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आप आए हैं। जी, बहुत जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा फ़र्ज़ अव्वली है आवाम नास की खिदमत करना। तो रात की 12 बजे तक की जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनकी कैफियत
आउट ऑफ डेंजर, यानी कि स्टेबल टू इम्प्रूविंग बताई जा रही है। खुदा न खास्ता कोई डेथ नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, तो इसका मतलब है कोई इतनी ज़्यादा यहाँ पे एंग्जाइटी की बात नहीं है, फिक्र की ज़्यादा बात नहीं है, खास तौर पे व्हेन वी टॉक अबाउट द यूके। है जी, बजाय इरशाद फरमा रही हैं, यहाँ पे कोई स्केयर की और गुंजाइश जहाँ नहीं तक है। डॉक्टर साहब ये है कि भी और दूसरी बीमारियाँ सच एज मलेरिया, अगर आप देखें मलेरिया में हर 30 सेकंड में एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक बच्चा मर जाता है जी। इससे, और इसी तरीके से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। एड्स है जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लोग इस तरह परेशान है जैसे कि उससे कहीं ज़्यादा की ये बात है, हालांकि ये तो इतना, आप मुझे बताइए कि हाउ बिग द क्राइसिस इज एट द मोमेंट व्हेन इट कम्स टू द होल वर्ल्ड। It is, Yasmin, it is indeed a crisis. क्यों? इसलिए ख़ासतौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी बीमारियों का आपने नाम लिया, हमें पता है कि इसकी वजह क्या है, इसका जरासीम कौन सा है, उसके सद्देबाब के लिए हमने क्या करना है, उसे ख़त्म कैसे करना है, और खुदा न खास्ता अगर किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता वो बीमारी लाहक हो गई है, तो उसका इलाज हमने कैसे करना है। जबकि ये, जैसे कि मैंने शुरू में ही अर्ज़ किया था, अनोखा, अनजाना, बिल्कुल एक वो नया जरासीम जो कि आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका, और 1 नवंबर 2002 में चाइना के एक मखसूस इलाका ग्वांगडोंग में ये पाया गया था। अब वहाँ से जो ये तेज़ी के साथ फैला है, तो किस तरह से ये क्राइसिस की सिचुएशन फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जॉइंटली क्यों ना क्रिएट करें। इज द fear of unknown in fact, you know, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, naturally it creates the panic and the fear and anxiety. Yes. And sometimes मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ बर्मिंघम में, और मेरे पास रोज़ाना जो फ्लू के केसेस पहले आया करते थे, कभी वो इस कदर परेशान मुझे नज़र नहीं आते थे, और जब अब ये है कि वो मरीज़ खाली आने के बजाय साथ सारी फैमिली भी होती है, और डॉक्टर जी की तरह सांस तो नहीं हो गया। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ से आप नज़र लगाइए कि पब्लिक में कितनी एंजाइटी है। And that shows that they have got the awareness as well. You know, एक अच्छी बात यह है कि आप, जैसे आपने बताया कि पूरी फैमिलीज को लेके आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि they know about this illness and they are doing something about it. जनाब बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रही हैं, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, और गाहे इस पे लिखा जाता रहा है, प्रिंट मीडिया में भी इस पे गुफ्तगू होती रही है। मैं भी 1-2 प्रोग्राम में पेश पहले भी हो चुका हूँ और लिखा भी है मैंने। तो यानी मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि भरपूर कोशिश हमारी, मैं अपनी बात करूँ, ये है कि अवामुल नास तक सादा तरीन अल्फाज में भरपूर इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए, ताकि उन्हें ज़हनी तौर पे परेशानी ना हो। हम बैठे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो अल्लाह, देखिए आपका और हमारा ईमान है कि शफा में जानब अल्लाह, सही बात है ना। तो डॉक्टर को जो इल्म दिया है वो भी तो अल्लाह ने दिया है, और वो डॉक्टर जो है वो सिंसियरली काम कर रहा है, अपनी हत्तौल इम्कान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है आपकी तकलीफ को डायग्नोज करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। तो उसका भरपूर ताउन कीजिए, इलाज करवाइए, लेकिन शफा जो है अल्लाह ताला। एग्जैक्टली। और हम अपने व्यूअर से यही कहेंगे कि अगर आपको कोई, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है सांस के बारे में, कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं, तो आप नंबर आपको हमारा याद ही होगा, और अगर नहीं याद है तो आप दोबारा से लीजिए, स्क्रीन पर है, आपको नज़र आ रहा होगा 0208963101, और आप हमें फ़ोन कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका इस बारे में तो ज़रूर बताइए। तो डॉक्टर साहब, अच्छा एक तो ये बात हुई, अच्छा सिम्टम्स को आप एक दफ़ा फिर अगर ये दोहराइए, और किस स्टेज पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जो भी हो रही हैं वो हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, और मैं इसे रिपीट करता हूँ अपने नाज़रीन के बेनिफिट के लिए, आगाज़ जो है वो सिंपल फ्लू से होता है, मसलन नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गले में जलन, दर्द वगैरह। उसके बाद सांस की नालियों में कुछ खराश, खांसी की शिद्दत, उसके बाद फिर सांस लेने में दिक्कत, और एक स्टेज ऐसा आता है कि जब ये सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो ये फ्लू में आमतौर पे नहीं होती है, ये तब होती है जब मामला फेफड़ों तक पहुंच रहा है। सांस लेने में दिक्कत, और साथ उसके फेफड़ों में, सीने में दर्द, इसके साथ फिर बेहोशी, गशी किसी कैफियत। तो ये एक्सट्रीम में जाके जब इसको एक्सरे मिसाल के तौर पर किया जाए, तो फेफड़ों में निमोनिया की वो डायग्नोसिस जो है वो सामने आती है जी। तो ये तो रहा खैर हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस, लेकिन अलामात जो हैं मैंने दोबारा दोहरा दी हैं अपने लिस्टर्स के लिए। ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा दोबारा कि टेम्परेचर पे नज़र रखिए,
आम फ्लू में 38 39 से तजावज़ नहीं करता टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे 39 ही नहीं, बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ। और फिर मुझे ये भी याद है कि एक केस मेरे पास ये मीडिया में मैंने इसके मुतालिक मैंने पढ़ा था कि वो थर्मोमीटर टूट गया था उनके मुँह में रखे हुए। ओहो। थर्मोमीटर टूट गया था उनके मुँह में रखे हुए। तो शुक्र है कि वो बच्चा नहीं था, वरना खुदा ना खास्ता इट कुड हैव बीन फेटल, बट फ्री आफ्टर ऑल। तो और मैं ये करना चाहूँ कि टेम्परेचर में खास तौर पे नज़र रखिए। जी हाँ। और जब आप ये महसूस करें ज़रा सा भी शक व शुबा, फ़ौरन अपने जीपी से कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप यूके में हैं तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, NHS डायरेक्ट से रब्ता करें अगर आपके अपने डॉक्टर अवेलेबल ना हों, और वो नंबर है 084544647। अगर आप इजाज़त दें दोबारा दोहरा दूँ। जी हाँ, ज़रूर, जल्दी से दोहरा दीजिए। NHS डायरेक्ट नंबर कुछ लोग 084544647। यहाँ पे ट्रेन स्टाफ हर वक्त आपकी कॉल्स की रिसीव करने के लिए और हदायत देने के लिए मौजूद होता है। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग लाइन पर हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम शहनाज को लेते हैं। विल्सन से आप बात कर रही हैं। शहनाज, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। शहनाज। हेलो जी, आप क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? हाँ जी, मेरे आदमी ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ सांस ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। 6 ਹਫ਼ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो मैं पंजाबी ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀ। हाँ जी। अच्छा, देखिए अगर साह दी ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਲ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੁਬਤਲਾ। अच्छा जी, वकास चौधरी आप लंदन से बात करें। अस्सलाम वालेकुम वकास एंड वेलकम टू द शो। जी डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से 2 क्वेश्चंस करना चाहूँगा। जी भाई, पहला तो ये कि जो इफेक्टेड एरियाज जैसे आपने बताया 28 कंट्रीज हैं दुनिया के। जी भाई। अगर आपको अर्जेंटली किसी भी में ट्रैवल करना है तो क्या आप किसी टाइप का मास्क वगैरह पहन के जा सकते हैं? और दूसरी बात ये कि क्या मतलब एज अ डॉक्टर आपकी एडवाइस लेना चाहूँगा कि क्या ये किसी किस्म का टेररिज्म हो सकता है कि एशियन इकोनॉमीज को सबोटाज किया जाए? आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की है और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश भी की जा रही है वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से। मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ और इसके पीछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी है जो मैं बात करने लगा हूँ। बायो टेररिज्म यानी कि ये कहना कि किसी टेररिस्ट शख्स ने या तंजीम ने कोई बायोलॉजिकल वेपन छोड़ा है जिसके बायस के ये सार्स की ये बीमारी फैली है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इससे आप मुतमईन हो जाइएगा। अच्छा, अब बारी है तारिक साहब की। आप नोवे से बात कर रहे हैं। तारिक, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आपका क्या सवाल है? शुक्रिया। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मेरे भाई ने जैसे भी मास्क के बारे में पूछा, मैंने भी वही पूछना है कि आया अगर इन ममालिक में हम लोग मास्क पहन कर सफ़र करें तो आया वो प्रोटेक्शन उसकी हो सकती है? दूसरा ये कि पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर रहा है जो ट्रैफिक बाहर से आ रही है? जी भाई, शुक्रिया। जी भाई, बहुत शुक्रिया। नफीस सवाल है आपका। देखिए, मास्क जो है वो सिर्फ इस हद तक आपको प्रोटेक्शन कर सकता है कि सार्स का जरासीम बजरिया खांसी या नज़ला आपके नाक तक ना पहुंच पाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हवा तो वही है, सांस तो हम सब ने लेना है और जाहिर है कि अगर सांस उसमें हवा में जरासीम अगर मौजूद हैं और आप किसी ऐसे मरीज़ के नज़दीक बैठे हुए हैं जो कि सांस में मुब्तला है, तो फिर ये मास्क जो है ये 50% ही आपको वो उससे बचाव कर सकता है। इससे आप 100% वो सेफ्टी ना समझिएगा। इससे ज़्यादा जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल जहाँ तक मेरा इल्म है ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में अलबत्ता उन्होंने ये कर दिया है कि जो बैनुल अक़वामी ट्रैवलर्स हैं एयरपोर्ट पे उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और अगर वो 38 से यास्मीन अगर वो ऊपर 38 से नीचे हो तो क्लियरेंस है। अच्छा। लेकिन अगर वो 38 से ऊपर है तो उन्हें इजाज़त नहीं देते हैं देने की। मैं समझता हूँ कि इंडिया ने अगर ये कर रखा है
تو پاکستان کو بھی کر دینا چاہیے اگر آلریڈی انہوں نے نہیں کیا تو. کیونکہ ایئرپورٹ پہ جو ہے انڈین ایئرپورٹس پہ اسٹاف جتنا بھی ہے انہوں نے بھی سارے ماسک پہنے ہوتے ہیں. یہ 50% یہی کہہ لیجیے کہ چونکہ بذریعہ سانس یہ بیماری پھیلتی ہے, کھانسنے سے اس کے وہ ڈراپلیٹس جو ہیں, جراثیم جو ہیں, وہ ناک کے ذریعے ظاہر ہے کہ وہ میں اگر بیٹھا ہوں تو مجھ پہ چلے جائیں گے. لیکن میں ایک اہم بات یہاں پہ ابھارنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ لیٹسٹ جو انفارمیشن کل رات 12 بجے تک کی جو ہے, میں بار بار دہرا رہا ہوں اسے معذرت کے ساتھ, اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو منہ اور گلے کی اور ناک کی سیکریشنز ہیں, مثلا کوئی صاحب ہیں ناک صاف کی انہوں نے, کوئی صاحب ہیں بلغمائی تھوک دیا, اللہ ایسا نہ کیجئے, ویسے بھی تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر اس تھوک میں اور اس لعاب میں یا اس میں ٹیشو میں اگر آپ نے صاف کیا, اس کو پھینک دیا, اور خدا نخواستہ اس میں اگر جراثیم اگر سارس کے موجود ہیں تو کسی بیچارے کو بھی لاحق متاثر کر سکتے ہیں, لہٰذا اس سے گریز کیجیے. ڈاکٹر صاحب اگر یہاں پر اس کنٹری میں کسی کو سسپیکٹڈ ہے یہ النس یا یہ انفیکشن, تو کیا یہ یہاں کی ہیلتھ اتھارٹی یہ اس کے پاس یہ فورس ہے, یہ مطلب یہ طاقت ہے کہ وہ اس آدمی کو کوارنٹین کر لیں ہاسپٹل میں اگر وہ جانا چاہے یا نہ جانا چاہے؟ جی بالکل, آپ نے دو باتیں, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اسے دو باتوں میں کہا, جانا چاہے یا نہ جانا چاہے. ہمارے پاس دونوں سچویشنز کا بھرپور کنٹرول موجود ہے. میں جنرل پریکٹیشنر ہوں, اپنی بات کرتا ہوں, مجھے گورنمنٹ نے تمام وہ فیسلٹیز, مجھے تمام انفارمیشن پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ میں ڈیسیجن آن دی اسپاٹ لوں. جہاں میں سسپیکٹ کرتا ہوں میرے ڈسپوزل پہ ہے ہاسپٹل, اس سے رابطہ کر کے ان کو الرٹ کرنا ہے میں نے, لیکن ساتھ میں نے بتانا بھی ہے کہ سارس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اس کا, یا میں نے وجہ بتانی ہے کہ کیوں میں سارس یہاں پہ سسپیکٹ کر رہا ہوں, کیونکہ عموماً کانٹیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں. تو اگر وہ والنٹری وہاں پہ چلا جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہیں جاتا تو قانونی طور پہ میرے پاس تحفظ ہے, وہ یہ کہ میں پولیس کو بلاؤں, اور پولیس جو ہے پھر وہ میری اس ریکویسٹ پہ, جی ہاں, وہ بالکل اس کو لے جا کے باقاعدہ کنڈکٹ کرے گی. یعنی بعض اوقات ہم ایسا بھی کرتے ہیں, ہمیں وائلنٹ پیشنٹس ہوں یا جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت ہی لازمی ہے ہاسپٹلائز ہونا, کہ وہ ہمارے ساتھ وہ نہیں کرتے تعاون, تو ہمیں پولیس کی مدد لینی پڑتی ہے. وہاں پہ مینٹل پیشنٹس کے سلسلہ میں ہمیں خاص ایک سیکشن کرنی پڑتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وائلنس ہو یا جہاں پہ پبلک کو ڈینجر ہونے کی, ظاہر ہے کہ صحیح سانس کا پیشنٹ اگر عوام الناس میں, اسٹریٹس میں یا گھر میں رہے گا تو کمیونٹی کے لیے ڈینجر ہے وہ. تو ایسی سچویشنز کو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے ہم ہاسپٹلائز کر سکتے ہیں, اور اس میں پولیس کی مدد مل جاتی ہے ہمیں. آپ نے بہت کام کی باتیں بتائیں ڈاکٹر سید رضا حسین صاحب, اور بھی آپ اور بھی جیسے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کے لیے آپ کو بلائیں گے, اگلی بار تکلیف دیں گے پھر کسی دن. تو اب تک کے لیے شکریہ بہت بہت آپ کا. جناب میں ممنون احسان ہوں جو آپ نے یاد فرمایا اور یہ موقع عطا فرمایا کہ میں کچھ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لسنرز کی خدمت کر پایا ہوں, اور میرے لیے باعث شرف ہوگا آئندہ بھی حاضر خدمت ہونا, اور جو میں ہمبل کنٹریبیوشن کر سکوں میرے لیے باعث شرف ہوگی بات. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو فار جوائننگ اس. شکریہ. اور یہ انٹرویو ہم نے لیا تھا, آپ نے جیسے دیکھا ان کے تعاون, جن کا تعاون ہمارے ساتھ تھا وہ تھے آل برٹش حجاج ایسوسیشن.